বর্ধমান দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী ভোট প্রচার সারলেন মন্তেশ্বর ব্লকে। মন্তেশ্বর ব্লকের অন্তর্গত মাঝের গ্রাম অঞ্চল, পিপলন অঞ্চল ও জামনা অঞ্চলে সন্ধ্যায় জামনা অঞ্চলে ভোট প্রচার করে আজকের কর্মসূচির সমাপ্তি হবে বলে জানা যায়। তৃণমূল কংগ্রেসের মনোনীত প্রার্থী কীর্তি আজাদকে সঙ্গে নিয়ে ব্লক নেতৃত্বের উদ্যোগে বিভিন্ন গ্রামে ভোট প্রচার করলেন তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী সমর্থকগণ। আজ সোমবার প্রচারের শুরুতেই মাঝের গ্রাম অঞ্চলের সিহি গ্রামে বাবা মহাদেবের মন্দিরে পুজো দিয়ে কর্মসূচি করলেন প্রার্থী কীর্তি আজাদ। পাশাপাশি এছাড়াও প্রত্যেকটি গ্রামের মন্দিরে পুজো দিলেন এবং ভোট প্রচার সারলেন। প্রার্থীকে কাছে পেয়ে সমর্থকরা চন্দনের ফোঁটা এবং ফুলের মালা দিয়ে বরণ করে নিলেন। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী কীর্তি আজাদ বললেন, ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছিলেন প্রত্যেকের অ্যাকাউন্টে 15 লক্ষ টাকা করে ঢুকে যাবে, কিন্তু সেই টাকা অ্যাকাউন্টে ঢোকেনি। তাদের মুখে সিএএ মানায় না। এও বললেন, যেখানে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য সরকার ফ্রিতে চাল দিচ্ছে আর কেন্দ্রীয় সরকার সেখানে গ্যাসের দাম 1200 টাকা নিচ্ছে। এই হচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকারের নমুনা। এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন মন্তেশ্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শেখ আহমেদ হোসেন, সহসভাপতি প্রতিমা সাহা, ব্লক সভাপতি, জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ, প্রধান উপপ্রধান সহ সকল সদস্যা এবং কর্মীবৃন্দরা। তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী কীর্তি আজাদ ও পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শেখ আহমেদ হোসেন কি বললেন তা আমরা শুনবে নেব। তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী কীর্তি আজাদ ও পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শেখ আহমেদ হোসেন কি বললেন তা আমরা শুনব। সব খবর সবার আগে মানুষের সাথে, মানুষের পাশে। কল্যাণ মণ্ডলের রিপোর্ট, মন্তেশ্বর টিভি নিউজ। আমাদের মন্তেশ্বর ব্লকে মন্তেশ্বর বিধানসভা কেন্দ্রে রোড শো করছি। এখন আমি এবং এর আগে আমাদের সমর্থক নিয়ে আমরা এই রোড শো করছি। আছে আমাদের জামনা, কুসুমগ্রাম, পিপলন। বলার কিছু আছে, আপনারা সাংবাদিক, আপনারা আমাদের থেকে বেশি ঘুরছেন, বেশি জানেন। আপনি দেখতে পাচ্ছেন প্রার্থী আসার পর্যায়ে না, মহিলা থেকে শুরু করে এলাকার প্রত্যেকটা মহিলা, আমাদের যারা প্রধান আছেন, অঞ্চল সভাপতি আছেন, বুথ সভাপতি আছেন, দলের যারা একনিষ্ঠ কর্মী, আমাদের মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আশীর্বাদ ধন্য প্রার্থী, তিনার সমর্থনে আমাদের এখানে অঞ্চলের আমাদের উপপ্রধান দীপল রায় থেকে আমাদের সদস্য আছে, আমাদের মিহির আছে, আমাদের অনিমেষ মাস্টার আছে, সকলেই যে আর এই গ্রামের মহিলারা কীভাবে রাস্তা ধারে বেরিয়েছে বলুন, এই উচ্ছ্বাস, এর ভেতরে কোনো সন্দেহ নেই। ওনাকে ঠেকানোর মতো কোনো জায়গাই নেই। কীর্তি আজাদজি উনি একজন ব্রাহ্মণ মানুষ, উনি পুরোহিত, মৈথিলি ব্রাহ্মণ। উনি প্রত্যেকটা মন্দিরে মন্দিরে যেভাবে মায়ের দর্শন নিয়ে থেকে আশীর্বাদ मिथुन चक्रवर्ती को बोलिए एक्टिंग करने जाके ज़्यादा अच्छा रहेगा। यदि उनको राजनीति के बारे में कुछ मालूम है तो ये पता होगा कि दीदी का प्रकल्प बच्चा के जन्मने से लेकर के इंसान के अंतिम संस्कार तक का है। नरेंद्र मोदी ने केवल झांसा दिया है, झांसा के अलावा कुछ नहीं दिया, और उसके साथ में जुमला दिया है। बंगाल के लिए एक दिन का मीटिंग नहीं किया। हमारी योजनाएं जो केंद्र सरकार थी उसमें पैसा नहीं दिया, मनरेगा का पैसा नहीं दिया, आवास का पैसा नहीं दिया। वो व्यक्ति आकर ढोंग रचाता है, घड़ियाल का आंसू बहाता है, क्योंकि उसने बंगाल के हित के लिए एक दिन भी मीटिंग नहीं किया। तो मिथुन चक्रवर्ती को कहिए जाके सिनेमा में करे, यहाँ पर आकर तथ्यों के साथ बात करें। जिसके पास तथ्य नहीं उसको बात करने का कोई अधिकार नहीं। और दीदी ने जो केंद्र सरकार को करना चाहिए था वो दीदी ने राज्य सरकार की तरफ से किया है। यह चुनाव केंद्र सरकार का है, नरेंद्र मोदी का है। नरेंद्र मोदी जवाब दे कि 2 करोड़ नौकरी हर साल का कहाँ गया। नरेंद्र मोदी जवाब दे कि काला धन विदेश से आना था वो कहाँ गया। नरेंद्र मोदी जवाब दे कि 15-15 लाख टका सबके बैंक अकाउंट में डालने वाला था वो कहाँ गया। नरेंद्र मोदी जवाब दे कि किसान का वो आय डबल करने वाला था।
नरेंद्र मोदी जवाब दे कि एमएसपी अभी तक किसान का फिक्स क्यों नहीं हुआ है। नरेंद्र मोदी जवाब दे, उसने कहा था महिला की सुरक्षा पर करेंगे, महिला की सुरक्षा क्यों नहीं हुई। नरेंद्र मोदी जवाब दे कि महंगाई को हम रोकेंगे, उसमें पेट्रोल डीजल, घर के अंदर घरेलू गैस, ममता बनर्जी चावल देती है फ्री में लोगों को बनाने के लिए, और नीचे मोदी का गैस होता है 1200 का। दीदी यही देखते हुए कि महंगाई मोदी इतना बढ़ा दिया है, लक्ष्मी भंडार में वो 500 का 1000 का 1200 की, क्योंकि दीदी को मालूम है अगर घर में माँ खुश है, प्रसन्न है, तो पूरा परिवार प्रसन्न है। मोदी जवाब दे इन प्रश्नों का। मिथुन चक्रवर्ती से भी कह दीजिए, और वो जो महिषासुर मिदनापुर से आया है जो महिलाओं का अपमान करता है, जिसने बोला कि दुर्गा माँ का माँ बाप कौन है, उसको पता होना चाहिए कि दुर्गा माँ का अवतार हुआ था, दुर्गा माँ का अवतार हुआ था महिषासुर को मारने के लिए, काली माँ का अवतार हुआ था रक्त बीज और चंडमुंड को मारने के लिए, तो देवी का अवतार होता है। उस आदमी को मालूम नहीं, बंगाल में लोगों को भद्र मानुष कहा जाता है, वो इससे बड़ा अभद्र आदमी बंगाल में कोई पैदा नहीं हुआ। वो बोलता है सुअर का चर्बी है, वो बोलता है बंगाल का लोग सुअर का चर्बी है। बोला जो लक्ष्मी भंडार लेता है वो दरिद्र है, जो उसको बोलता है दिलीप घोष वापस जाओ, गो बैक, उसको बोलता है वो कुत्ता है। बोलिए ये जबान इस्तेमाल करने वाला है? ऐसा आदमी का समाज में कोई जरूरत नहीं है। बीजेपी वाला इसको वहां से पैक करके मिदनापुर से भेजा, यहाँ का टीएमसी और यहाँ के जनगण मिल करके उसको उसी पैकिंग में वापस मिदनापुर भेजे। का क्या प्रचार चलता है? मणिपुर 1 साल से जल रहा है। वहां पर हमारी बहनों को जिस तरीके से उनके साथ में बेटियों के साथ हो रहा है, उसके बारे में मोदी एक बार बोला? अमित शाह बोला? एक तरफ बोला कि हम सुरक्षा करेंगे, बोला एक बार? आज भी मणिपुर जल रहा है, उन लोगों को डराया जा रहा है, उसके बारे में बोलिए, जवाब देगा। यहाँ पर आकर दीदी को बदनाम करने का कोशिश करता है, लेकिन इन लोगों का कुछ नहीं चलने वाला, टाई फिस हो जाएगा सब। कुछ नहीं चलेगा। दीदी 42 का 42 सीट जीतेगी और जाकर दिल्ली के सिंहासन